So, welcome students of class 9th. Today we have lecture number 18. In this lecture we will study chapter 3rd coordinate geometry. So I hope students you will give attention towards this video lecture, and chapter 3rd coordinate geometry is not new for you, because you have already studied some basics of this chapter in class 8th. Okay, student, before starting this chapter, first of all we come to the exercise 2.5. 2.5, that is from second chapter. In this chapter, question number 14 is there. Second part of question number 14. In this part, question is 28 cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube. It is said that without actually calculating the cubes, evaluate it. Evaluate with the help of identities. Students, when it is asked that without actual calculating, it means we should not do as it is as question is given, but we should use some identities, some formulas, some other way to find our solutions. So here, student, we have one identity. You are well known about this identity, that a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to, in first bracket, a plus b plus c, and in second bracket, a square b square c square minus ab minus bc minus ca. Students, don't worry, this identity can be written as x plus yz, as x cube plus y cube plus z cube. स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी को आप ए बी सी या एक्स वाई में लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड में. ये आपको कई बार बताया जा चुका है. तो ओके स्टूडेंट्स, think about this identity. If in this identity, if ABC, the term ABC are the sum of three values become 0, means if this value means A plus B plus C is 0, तो क्या होगा? It means A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC is equal to 0 into next bracket. Okay? अब 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे. इफ 0 इज मल्टीप्लाइड विद एनीथिंग इट बिकम्स 0. फाइनली इन राइट हैंड साइड इट बिकम्स 0. ये सब 0 हो जाएगा. तो यू कैन राइट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, दैट इज फाइनली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc. तो स्टूडेंट, दिस इज अ कंडीशनल आइडेंटिटी. इफ द सम ऑफ थ्री numbers or terms is 0, then we can use this identity directly to find the value of like these questions. So here, student, remember, now come to solution. We have A like 28, B minus 15, and C is here minus 13. So first of all we check that is sum of these numbers 0. So we have 28 plus minus 15 plus minus 13. Here, students, 28 minus 15 minus 13, finally it become 0. Students, these terms are 0. It means we will use here this identity. So thus we can write directly 28 cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube is equal to, where A 28, B minus 15 and C is minus 13, then is equal to, we can write 3 into A into B into C. 3 into A means 28, B means minus 15 and C means minus 13 directly. And now do multiplication, minus into minus plus, finally 3 into 28 into 15 into 13. So students, here 3 8 ja 84, 28 3 ja I think 84. Now 15 into 13 I think 195. Okay students, and student, now finally I think you will multiply this and find your answer. मल्टीप्लाई कीजिए एंड आप इसका आंसर फाइंड कीजिए. तो स्टूडेंट, इट इज़ वेरी क्लियर दैट this type of sum will be solved
as this sum have been solved. तो स्टूडेंट्स, तो राइट डाउन दिस सॉल्यूशन. हाँ, तो स्टूडेंट्स, here last question of exercise 2.5 is there. Then we start chapter 3rd. Student, the last question is question number 16. In this question, what are possible expressions for dimensions of the cuboids whose volumes are given below? So students, you know what are cuboids? Cuboid means a structure, three-dimensional structure like that, like this cuboid. So student, here we have a cuboid like structure, okay, where length, breadth and heights are there. It means and formula, you know, volume of cuboid is equal to length into breadth into height. You know very well, and you will study in coming chapters about in which mensuration will be discussed in mensuration, cube, cuboid, cylinder, cones, etc. You will get different shapes and different formulas to find surface areas or volumes. So here one of them is cuboid. Student, so in case of cuboid, you know the volume of cuboid is the length, breadth and height. Here we have volume of a cuboid. It means the expression कंसिस्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ये जो एक्सप्रेशन है मीन्स जो वैल्यू ऑफ वॉल्यूम है, इसमें तीनों चीज़ें हैं. क्या क्या है इसमें? आपका लेंथ भी है, आपका ब्रेथ भी है एंड हाइट भी है. तो दिस एक्सप्रेशन सिमिलरली इन दैट केस हियर दिस वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड रिप्रेजेंट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ओके स्टूडेंट्स, बट वी नीड टू फाइंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट separately as a factor. So first of all we factorize this taking 3x as a common, then we get x minus 3 4 ja 4. So very simple students, if you take 3x is common, you will get in bracket x minus 4. So we can write here 3x and x minus 4. So no doubt students, here you can say these are three measurements and this can be said that length, breadth and height. Okay students, so these are the answers. What are possible expressions for dimensions? So these are possible dimensions, not exact dimensions. लेंथ 3 भी हो सकता है, x भी हो सकता है एंड x माइनस 4 हो सकता है. इसलिए लिखा गया है यहाँ पे पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर डायमेंशन. तो डायमेंशन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट, दीज आर द डायमेंशंस. आपका आंसर हो गया. सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कॉमन? आई थिंक 4k is common here. Take 4k is common, then we get 4 3 is 12 y square plus 2y and minus 4 5 is 20. So I think this is common factor. Similarly, you can factorize this. 5 3 is 15 and you know 2. 5 3 is 15. 5 minus 2 is 5 3 is 15. 5 minus 3 is 2. So splitting middle term, you can factorize this and certainly you will get possible dimensions of cuboid. So this is a hint to you. You need to factorize this using middle term split. 5 3 is 15 or 5 minus 3 2. Okay students, so use this trick to find possible dimensions. So okay students, with this question, this solution of this question, we conclude 2.5. Now we will start chapter 3rd, coordinate geometry. So students, till then write down this. So students, here we now start coordinate geometry. Coordinate geometry, you know, is a branch of mathematics in which we know the location of different points, different object. माने डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का लोकेशन कैसे पता करेंगे. अब फॉर एग्जांपल दिस इज वाइट बोर्ड. अगर आप इसको देखें कि आप वाइट बोर्ड है और आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में अगर हम 2D की बात करते हैं, देखिए 2D
टू डायमेंशनल एंड 3D मीन्स 3 डायमेंशनल. इन केस जनरली 2D में हम x एक्सिस एंड y एक्सिस लेते हैं, बट इन केस ऑफ 3D x एक्सिस we take generally x axis, y axis and z axis. Okay students, so here we will discuss how to locate या how to know the position of point. स्टूडेंट इस ब्रांच को डेवलप करने में पहला नाम आता है रेने डेकार्टे. ये कौन थे? ये एक फ्रेंच फिलासफर एंड मैथमेटिशियन थे. रेने डेकार्टे साहब ने क्या किया था, इस ट्रिक को डेवलप किया है. उसका नाम दिया गया है कार्टेशियन सिस्टम. ओके स्टूडेंट, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे और आप एक्चुअली आपने 8th में इसको डिस्कस किया होगा. बट एक्सिस क्या है, क्वाड्रेंट्स क्या है, एब्सिसा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ओरिजिन, these are different words I think which you must know. Okay students, तो here 2D, अगर हम 2D यानी 2 डायमेंशनल सिस्टम को देखें तो जैसे आपका ये ब्लैक बोर्ड है, सॉरी वाइट बोर्ड है. अगर हम इस कॉर्नर को लें तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स x एक्सिस एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट y एक्सिस. एंड कोई अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है, सपोज कीजिए हियर दिस ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका लोकेशन पहले हम यहाँ ओरिजिन से देखेंगे. ओरिजिन से x एक्सिस पे ये, और फ्रॉम y एक्सिस ये आपका y एक्सिस होगा. तो ये कहलाता है आपका x डिस्टेंस, ये कहलाता है y डिस्टेंस. तो 2D में आप ऐसे लोकेट कर सकते हैं. बट इन केस 3D में सपोज एक रूम है, उस रूम का कॉर्नर है. रूम के कॉर्नर को अगर आप इमेजिन करें तो कॉर्नर में 3 लाइंस क्लियरली मीट करती हैं कॉर्नर पे. सपोज कीजिए एक ये है और एक ये है और एक ये है. इमेजिन कीजिए कि आप रूम के कॉर्नर पर खड़े हैं तो कॉर्नर पे आपको 3 लाइंस मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी. उनमें से एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक z एक्सिस रहेगी. और एक्चुअली ये जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं लाइक स्फीयर, उन सबको मेजर करने के लिए 3 डायमेंशनल फिगर को मेजर करने के लिए 3D का यूज़ किया जाता है. वो आप आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में. आपके क्लास में केवल 2D रिप्रेजेंटेशन है. 2D मीन्स जिसमें x एंड y एक्सिस को लेके हम अपना सारा का सारा कैलकुलेशन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो सी व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन. आई थिंक इट इज वेरी क्लियर दैट फॉर विच पर्पज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डेवलप्ड टू locate point, to find exact location of point are different things. In this way, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इक्वेटर, दिस बहुत सारी लाइंस हैं, ये भी सब शो करती हैं लोकेशन. और डिफेंस साइंस में अगर आप देखें तो वहाँ तो पूरा का पूरा सिस्टम ही है, ग्रिड सिस्टम, जिससे टारगेट का लोकेशन या जो दुश्मन होता है, एनिमी होता है, उसका लोकेशन हम पता कर सकते हैं उस ग्रिड सिस्टम से जो मैप आता है. तो वहाँ पर आपको 2D एंड 3D का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल समझ में आएगा. तो इस मैथमेटिक्स का ये एप्लीकेशन है. इसका एप्लीकेशन हम अपने सिविल लाइफ में एंड मिलिट्री लाइफ दोनों में हम कर सकते हैं या किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो हियर वी वांट टू डिस्कस अबाउट कार्टेशियन प्लेन. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. तो आप सबसे पहले 2 लाइन के बारे में सोचिए. एक वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस कहेंगे, y एक्स, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं x डैश. सिंपली दिस इज नोन एज x एक्सिस. ओके स्टूडेंट्स, तो now students here vertical line is y axis, horizontal line is x axis. Where both lines meet together, this point of intersection is called origin. Okay students, and origin is represented by O. Okay students, and from origin we take right hand side x axis positive,
This is positive direction, and from origin left hand side is considered as negative direction. Similarly, in case of vertical line, upper side is considered as positive direction, down side is as negative direction. Okay students, now from these are 4 parts. आप देख रहे हैं कि ये लगभग 90 एग्जैक्ट 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 90 90 90 टोटल हुआ कंप्लीट एंगल 360. तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट वन इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके स्टूडेंट्स, ड्रा कीजिए इसे आप. हाँ, तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव written quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. Okay students, now the sign convention of quadrants. This quadrant consists of plus plus sign convention, and this minus plus, and third is minus minus, and fourth is plus and minus. Suppose we have a point, let point P whose coordinates are 4 and 3, and other point is Q whose coordinates are -2 and 1. स्टूडेंट्स ये P, Q, R, S, T ये सब पॉइंट्स हो सकते हैं. इन्हें हम कंबाइंडली नोन एज कोऑर्डिनेट, इन्हें क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट. अभी आपको बताएंगे कि इनका अलग अलग नाम क्या है, बट आप देखिए कैसे हम ड्रा करते हैं. आपने क्लास 8th में भी ग्राफ प्लॉट किया होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, जैसे कोई पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट है 4 and 3. तो स्टूडेंट रिमेंबर दिस पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा, ABSCISA. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा, SA spellings here, and this other point is called ऑर्डिनेट. तो स्टूडेंट्स दिस ऑर्डिनेट एंड पहला पॉइंट जो है आपका एब्सिसा है. एब्सिसा इज ऑलवेज रीड इन एक्स एक्सिस, ये हमेशा एक्स एक्सिस में पढ़ा जाएगा, और ऑर्डिनेट जो है हमेशा वाई एक्सिस में पढ़ा जाता है. एक्स मीन्स वर्टिकल लाइन, वाई मीन्स एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई मीन्स वर्टिकल लाइन. ओके स्टूडेंट्स, एंड बोथ आर कंबाइंडली नोन एज कोऑर्डिनेट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर कंबाइंडली नोन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट. सो पॉइंट P हैज कोऑर्डिनेट 4, 3, पॉइंट Q हैज कोऑर्डिनेट -2 and 1. तो स्टूडेंट ये भी ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड लेफ्ट हैंड साइड है. वाई में अपर साइड पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव. अब देखिए फॉर एग्जांपल वी वांट टू लोकेट P पॉइंट. अब हम पॉइंट P को लोकेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ओरिजिन से ऑल साइड्स इक्वल डिस्टेंस लेंगे, लाइक 1 2 3 4 5. सिमिलरली हियर 1 2 3 4. ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली in all directions 1 2 3 4, 1 2 3 4. अप्रॉक्सीमेटली आपने हर साइड में x पॉजिटिव x नेगेटिव, y पॉजिटिव y नेगेटिव आपने इक्वल डिस्टेंस मेजर किया. एंड वी हैव पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर 4 and 3. आप देखिए इसको देख के ही हम बता सकते हैं किस कोऑर्डिनेट में होगा. प्लस 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 है तो मीन्स क्या हुआ कि प्लस प्लस किस केस में होता है, किस कोऑर्डिनेट में? कोऑर्डिनेट फर्स्ट में. सेकंड पॉइंट है माइनस और प्लस, बिकॉज 1 इज प्लस, तो माइनस और प्लस किस कोऑर्डिनेट में होगा? सेकंड में. तो आप पॉइंट का साइन देख के बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा या लोकेट करेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करना होगा. क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि आपको उनका लोकेशन बताना है और लोकेट करना है. अब हम P को हम लोकेट करना चाहते हैं. P है 4 and 3, तो एक्स एक्सिस में पहले पढ़ेंगे 1 2 3 4, यहाँ पहुँच गए, और 3 वाई एक्सिस में जाएंगे 1 2 3. इसके बाद हम इसको ऐसे स्केल से करेंगे, तो ये जहाँ पे दोनों पॉइंट मिलेगा दिस इज कॉल्ड 4 and 3, एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट P. ओके स्टूडेंट्स, बाय दिस वे
you can locate all type of point. First, know the position of point, where in which quadrant the point lie, saying sign, plus plus, that is first quadrant. If a point is minus 2 1, that is second quadrant. Similarly, suppose R point is given and its coordinate is minus 4 and minus 2, then you can say this point lie in third quadrant. और सपोज पी क्यू आर एस टी लास्ट वन इज 5 एंड माइनस 2, तो ये प्लस एंड माइनस है, इट मीन्स दिस पॉइंट विल लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स हियर अब एक वन मोर केस इज हियर. इफ सपोज पॉइंट टी इज हियर, इट्स कोऑर्डिनेट इज 0 and 4 and point x is here, its coordinate are minus 3 and 0. तो स्टूडेंट यदि एब्सिसा और ऑर्डिनेट में कोई एक जीरो हो तो उसका लोकेशन किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वो कहाँ होगा, एक्सिस पे होगा. फॉर एग्जांपल 0 and 4, तो 0 मीन्स ओरिजिन, और आप जानते हैं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0. तो ये पॉइंट अगर टी है 0 4, तो 0 and 4 मीन्स वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड 1 2 3 4, तो दिस इज पॉइंट टी एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज 0 4. तो ये जो पॉइंट एक्सिस पे हुआ, नॉट इन एनी कोऑर्डिनेट. क्लियरली वंस अगेन आई वुड लाइक टू स्टेट दैट इफ एनी वन मीन्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यदि इनमें से कोई भी जीरो है तो वो पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, वो कहाँ होगा, एक्सिस पे होगा. एक्सिस में भी पॉजिटिव साइड एंड एक्सिस में भी नेगेटिव साइड. ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉसिबिलिटी है. सिमिलरली जैसे -3 and 0 है, तो -3 मीन्स 1 2 3 and 0 हियर. तो हियर x पॉइंट -3 and 0 विल लाई. तो स्टूडेंट्स इट इज क्लियर दैट अगर एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट में कोई भी एक पॉइंट 0 है तो किसी एक्सिस में होगा, ना कि कहीं क्वाड्रेंट में होगा. बाकी अगर ऐसे पॉइंट्स हैं तो वो किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा. तो दिस इज द वे हाउ टू लोकेट पॉइंट एंड हाउ टू नो व्हिच पॉइंट इज गिवन इन होम quadrant. Okay students, now I would like to conclude this lecture here. I hope you will watch attentively and you will do your work, and also you will subscribe our channel to get updated video. So students, subscribe this channel and get new and updated videos. Okay students, then we will meet in next lecture number 19. Okay, thanks.